Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to another session of communication skills. Our today's session concerns Precis writing. In today's session, we will talk about what is Precis writing, what are qualities of a good Precis writing, and what are rules to make a Precis writing. So, first of all, what is a Precis writing? A précis is a clear, compact, logical summary of a passage. It preserves only the essential or important ideas of the original. The word précis is derived from a French word which means summary. So we can say a précis writing is the art of summarizing. Précis writing is one of the most useful skills you can acquire for your work both as a student and as a professional. Précis writing involves summarizing a document to extract the maximum amount of information, then conveying this information to a reader in minimum words. Précis is a short summary of a paragraph, but writing précis is more than just making the paragraph shorter. Writing précis requires skill so that you do not miss out a point and capture all the main essence in one single small paragraph. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्रेसी राइटिंग जो है इट इज़ ऑल अबाउट समराइजिंग, लेकिन समराइजिंग का ये मतलब नहीं है कि वी जस्ट summarize or we just minimize information in just one paragraph, balki we have to look for that all the essential parts are conveyed in the summary or not. यानी कि हमने जो important points हैं उन्हें miss नहीं करना. Therefore, for writing a précis, you need to follow a particular set of rules, and that is why it is important to understand the rules of précis writing. ठीक है, इसलिए कि एक इफ़ेक्टिव समरी प्रोवाइड करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करनी है. ठीक है, और हमने सिर्फ एक पैसेज को शॉर्ट नहीं करना, बल्कि हमने अपनी एक स्किल के ज़रिए उस पैसेज के अंदर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें पॉसिबल शॉर्टेस्ट वे में कन्वे करना है अपने रीडर को. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेसी राइटिंग के लिए कंप्रीहेंशन जो है वो एसेंशियल है. कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्रीहेंड व्हाट हैज़ रिटन इन अ पैसेज, और फिर आफ्टर कंप्रीहेंडिंग दैट वेरी पैसेज हमने उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में कम्युनिकेट करना है अपने रीडर्स को. The motive of writing a précis is to make the reader understand the main essence of the paragraph in a shortest format. वही बात कि हमारा जो मकसद होता है प्रेसी राइटिंग का वो ये कि हमने पहले ख़ुद कंप्रीहेंड करना है कि उस पैसेज के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, और उस इन्फॉर्मेशन का जो क्रक्स है, ठीक है, जो एसेंस है, वो हमने अपने रीडर को शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में कन्वे करना होता है. A précis is a summary and it is a very useful exercise. Most of us read carelessly. Writing précis gives training in careful reading. Précis writing is regarded as a very important kind of composition because it develops one's capacity to discriminate between the essential and the non-essential. A précis writing जो है basically, as it has already been said, it is a summary. ठीक है, लेकिन ये एक स्किल है जिसमें हमने क्या करना होता है कि हमने एक मतलब इट इज़ आल्सो लाइक अ कंपोजिशन. ठीक है, जो डेवलप करती है हमारी जो कैपेसिटी है
कि how we discriminate between the essential and the non-essential parts or information in a passage, कि हमने अपनी comprehension की बेस पर एक पैसेज के अंदर से जो essential पार्ट्स हैं उन्हें और जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करना होगा. A precis is a shortening, in your own words, of a text of written work. You are to describe as accurately and briefly as possible the substance or main ideas contained in a text. ठीक है. प्रेसी राइटिंग जो है वो शॉर्टनिंग, एक एक टेक्स्ट को, जो रिटन टेक्स्ट है उसको आपने अपने वर्ड्स में शॉर्ट करना है. अब इसमें शॉर्ट करते हुए हमने ये चीज़ मेक श्योर करना है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक्यूरेटली डिस्क्राइब करना है. ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी मस्ट बी देयर, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है आपने उस इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली कन्वे करना है अपने रीडर को. ठीक है, एंड ब्रीफली एज पॉसिबल, और जितना पॉसिबल होगा वो शॉर्टेस्ट कॉम्पैक्ट वे में आपने एक्सप्रेस करना है. ठीक है, और अब वी हैव टू लुक दैट वेदर जो मेन आइडियाज़ हैं उस टेक्स्ट के वो हमने उनको कवर अप किया है या नहीं किया. इसलिए अब इसके लिए क्या है कि टू राइट एन इफेक्टिव पैसेज, रीड द पैसेज सेवरल टाइम्स फॉर अ फुल अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले क्या है कि हमने जो पैसेज है उसको बार बार पढ़ना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स हमने उसको पढ़ना होगा. ठीक है, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग को पहुंच सकें. नोट की पॉइंट्स, इट मे इन फैक्ट बी हेल्पफुल टू अंडरलाइन दीज वर्ड्स. ठीक है, फिर हमने उस पैसेज के अंदर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है, ताकि उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होगा. और वी हैव टू केयरफुल दैट वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ एब्रीवेशन और कंट्रैक्शंस. ठीक है, हमने अपनी समरी के अंदर एब्रीवेशन नहीं यूज़ करनी. Finally, check your précis against the original to be sure that it is exact and retains the order, proportions and relationships of the original. ठीक है, फाइनली हमें ये चेक करना है कि हमारा जो प्रेसी है वो जो ओरिजिनल पैसेज है उसके साथ जो है वो उस दैट इज़ एग्जैक्ट और नॉट. ठीक है, और जो ऑर्डर या जो प्रोपोर्शंस हैं या जो इन्फॉर्मेशन है जो ओरिजिनल पैसेज के अंदर, वो सारे के सारे पॉसिबल शॉर्टेस्ट वे में हमने अपनी प्रेसी में प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड प्रेसी राइटिंग. अ गुड प्रेसी शोज़ द राइटिंग स्किल्स ऑफ अ पर्सन. ठीक है, कोई एक जो प्रेसी राइटिंग है वो एक जो भी राइटर है उसकी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करती है. ठीक है, अगर जितनी अच्छी प्रेसी राइटिंग होगी, यानी कि जितने अच्छे तरीके से आप एक पैसेज को समराइज़ करेंगे, ठीक है, ये आपकी जो राइटिंग स्किल है उसको शो ऑफ करेगी. इट मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़. अब एक प्रेसी राइटिंग के अंदर ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो ज़रूरी हैं होना. नंबर 1, क्लैरिटी. Clarity means getting your message across so that the receiver can understand what the writer is trying to convey. Clarity का मतलब ये है कि आपने ये चीज़ देखनी है कि आप अपने एज अ राइटर आप अपना जो मैसेज है उसको किस तरह से और कितने एग्जैक्ट वे में आप कन्वे करेंगे. It is the basic and essential need of a précis. The ideas should be clear and understandable.
ये सबसे पहली ज़रूरत है एक प्रेसी राइटिंग की, कि आपके आइडियाज़ जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और कंप्रिहेंसिबल होने चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्विटी इन योर राइटिंग. यानी कि आपने अपनी राइटिंग के अंदर एम्बिग्विटी नहीं लेके आनी, यानी कि आपने मुबहम नहीं बनाना उन्हें, बल्कि ईजी अंडरस्टैंडेबल आपने अपने आइडियाज़ को बनाना है. द राइटर कैन अचीव क्लैरिटी बाय यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल स्ट्रक्चर. अब क्लैरिटी कैसे आती है कि आपने अपने जो वर्ड्स, जो वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल हो, ठीक है, ना कि ऐसी वोकेबलरी हो जो इंट्रिकेट कम्प्लेक्स वर्ड्स हो जो आपके रीडर को समझ ही ना आ रहे हो, बल्कि आपने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है और आपकी जो राइटिंग की जो स्ट्रक्चर होगी वो भी आपकी सिंपल होगी. ऐसे सेंटेंसेस नहीं कंस्ट्रक्ट करने जिनको आपका रीडर आसानी से ना समझ पाए. इफ़ योर प्रेसी इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर इट विल लूज़ इट्स इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग्स फॉर द रीडर. अगर आपकी प्रेसी आपके रीडर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो फिर आपकी प्रेसी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. नंबर सेकंड, करेक्टनेस. Mistakes in your writing always irritate the reader. Of course, mistakes are never intentional. Even so, there is no excuse for them. यानी कि आपकी राइटिंग के अंदर जो है वो मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, योर प्रेसी मस्ट बी करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. अगर उसमें गलतियाँ होंगी, मिस्टेक्स होंगी, तो वो आपके रीडर को इरिटेट करेगी. At the time of writing or composing a précis, the writer must ensure that the facts and figures are correct. अब जब भी प्रेसी राइटिंग लिखी जाएगी तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फैक्ट्स या फिगर्स हैं वो करेक्टली कन्वे किए गए हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड स्पेलिंग of words must be correct because a single mistake in structure and spelling may spoil the message. ये आपके जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस की और आपकी जो वर्ड्स हैं उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो करेक्ट हों. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नहीं चांस नहीं होता बिल्कुल सिंगल मिस्टेक का. अगर ऐसा वाक़या हो जाए कि आपकी स्पेलिंग्स या आपकी स्ट्रक्चर गलत होगी तो ये आपका जो मैसेज है उसको बिल्कुल स्पॉइल कर देगी. वी मे कंसिडर द मिस्टेक्स अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. हम ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी मिस्टेक्स को कंसिडर कर सकते हैं. नंबर वन, मिस स्पेल्ड वर्ड्स. अगर आपके वर्ड्स मिस स्पेल्ड हैं तो ये आपका मैसेज जो है वो इनकरेक्ट होगा. मिस्टेक्स इन फिगर्स एंड डेट्स. अगर डेट्स या फिगर्स या फैक्ट्स कोई है तो वो उनके अंदर जो गलतियाँ होंगी ये भी आपके मैसेज को इनकरेक्ट बना देंगी. मिस्टेक्स इन पंक्चुएशन. पंक्चुएशन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके मैसेज को क्लियरली और करेक्टली कन्वे करने के लिए, इसलिए आपने पंक्चुएशंस को बहुत केयरफुल रहते हुए आपने देखना है. मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर एंड स्ट्रक्चर. ग्रामर और स्ट्रक्चर के अंदर भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. Number third is objectivity. Objectivity means the ability to present or view facts uncolored by feelings, opinions, and personal bias. While making a précis, the writer should adopt an objective approach. He should not give and add his personal opinion and ideas in a précis. A précis should be purely a summary of the original text without any addition. अब क्योंकि प्रेसी राइटिंग में आपने एक राइटर ने जो इन्फॉर्मेशन दी एक पैसेज के अंदर, आपने उसको एज इट इज़ शॉर्टेस्ट वे में आपने कन्वे करना होता है अपने रीडर को. तो अब आपने स्ट्रिक्ट रहना है अपने रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू तक. यानी कि आपको ये अलाउ नहीं कि आप अपने पर्सनल या सब्जेक्टिव व्यूज़ इसमें ऐड करें. ठीक है, देखिए आपकी फीलिंग्स, आपके ओपिनियंस और आपकी जो पर्सनल बायसनेस है वो कहीं से भी उस प्रेसी राइटिंग के अंदर
शो ऑफ ना हो. So you need to be objective rather than subjective. Number 4, coherence. Coherence means the logical and clear interconnection of ideas in a written piece of work. Coherence होता है कि जब आप आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं, उनके अंदर एक लॉजिकल सीक्वेंस डालते हैं, इन्हें कोहेरेंस कहते हैं. अ गुड प्रेसी शुड बी कोहेरेंट. द आइडियाज़ which are presented in a précis must have a logical connection and they all should be interrelated. अब जो भी आइडियाज़ आप अपनी प्रेसी राइटिंग के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो उनके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन हो, यानी कि वो डिस्कार्डेड इंफॉर्मेशन ना हो बल्कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से interconnected हो. In short, we may say that the ideas should be well knitted so that the writer may not be confused and lose his interest. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आइडियाज़ हैं, these ideas should be well knitted. आपने सही तरह से उन्हें बुना हो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हो, ताकि आपका रीडर जो है वो उन आइडियाज़ को समझने में कंफ्यूज ना हो. ठीक है. और अगर आइडियाज़ लूज्ड होंगे तो फिर आपका जो रीडर है उसकी इंटरेस्ट उस प्रेसी राइटिंग के अंदर से हट जाएगी. तो इसलिए बेहतर है कि देयर मस्ट बी कोहेरेंस इन योर राइटिंग, मीनिंग दैट द आइडियाज़ should be linked together and there should be a logical sequence or logical connection between them. Next, completeness. Another striking feature of a good précis is completeness. A précis should be complete in all respects. Completeness means that the writer should include all the important facts in a précis. Completeness का ये मतलब है कि आप अपनी प्रेसी राइटिंग के अंदर सारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इंफॉर्मेशन जो है उन्हें इंक्लूड करें, और ये सबसे अहम फीचर है प्रेसी राइटिंग का. To make it short, he should not omit the important ideas. These mistakes on the part of the writer will spoil the importance and meaning of the précis. अब ब्रेविटी अचीव या जो कंसाइजनेस है उसे अचीव करने में ये ना हो कि राइटर जो है वो जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उन्हें ओमिट कर दे, बल्कि आपने जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उन पे फोकस करना है. नेक्स्ट वन इज़ conciseness. Conciseness is a desirable quality of a good précis. Conciseness means to say all that needs to be said and no more. The writer should write what is necessary and avoid writing unnecessary details. Conciseness का मतलब होता है short, short but full of meaning, यानी कि मुख्तसर मगर जामे. देखिए, आपने अपनी प्रेसी राइटिंग को कंसाइज बनाना है, लेकिन कंसाइजनेस इस तरह से कि आपके मैसेज के अंदर जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो इंक्लूडेड हो. अ कंसाइज पीस ऑफ वर्क कन्वेज द मैसेज इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, यानी कि आप अपने मैसेज को फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कन्वे करें. But one point must be kept in mind that the writer should not omit some basic and essential facts to achieve conciseness. To achieve conciseness, notice the following suggestions. यानी कि कुछ suggestions हैं जो आपके मैसेज को concise बनाने में मदद देती हैं. Omitting unnecessary details. सबसे पहले आपने देखना है कि जो unnecessary details है आपने उसको अपनी प्रेसी से omit कर देना है. Eliminate wordy expression. आपने जो वर्डी एक्सप्रेशंस हैं उन्हें भी एलिमिनेट करना है अपनी प्रेसी के अंदर. इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल. आपने अपनी प्रेसी में सिर्फ रेलेवेंट मटेरियल को ऐड करना है. अवॉइड अननेसेसरी रेपिटेशन से आपने बचना है. ठीक है. रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, इन दोनों चीज़ों से आपने अपनी प्रेसी राइटिंग में अपने आप को बचाना है.
अब देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट रूल्स हैं एक अच्छी प्रेसी राइटिंग लिखने में। A well-written piece should be a serviceable substitute for the original work. The goal of a précis is to preserve the core essence of the work in a manner that is both clear and concise. While writing a précis, the writer should follow these rules to make it an effective piece of work. These rules include: number one, read carefully. First, read the passage twice or thrice carefully to summarize it. This will enable you to understand the main theme of the passage. देखिए, जो आपको पैसेज दिया गया है जिसकी आपने प्रेसी राइटिंग लिखनी है, आपने उस पैसेज को 2 या 3 दफ़ा पढ़ना है उसे समझने के लिए, और फिर जब आप उसको ट्वाइस या थ्राइस आप उसको पढ़ेंगे तो दिस विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में हमें कुछ आइडिया समझ आते हैं, सेकंड रीडिंग में कुछ ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और अगर हम लोग तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, और इस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे हमने उस पैसेज को समराइज़ करना है, और ये हमें हेल्प करेगा उस पैसेज के अंदर से जो मेन थीम है उसे डिसाइफर करने में। देन अंडरलाइनिंग, underline and mark the important ideas and essential parts from the original text। ठीक है, जब भी आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ या जो एसेंशियल पार्ट्स हैं उन्हें आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, और वो कैसे, वो जब आप उसको 2 या 3 दफ़ा पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसके थीम को, उसके सब्जेक्ट को आप जब समझेंगे तो फिर उसके बाद आप उसके अंदर से इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को या इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन कर देंगे। ये आपको बाद में उसकी समरी लिखने में हेल्प आउट करेगा। देन आउटलाइन, विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइंड आइडियाज़ ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ योर प्रेसी। अब आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट आइडियाज़ अंडरलाइन किए, अब आपने उन अंडरलाइंड आइडियाज़ की मदद से आपने एक आउटलाइन बनानी है अपनी प्रेसी की। ओमिशन, omit all the unnecessary information or the long phrases which could be replaced by one word। फिर आपने क्या करना है कि जो unnecessary information है और जो long phrases हैं, जो wordy expressions हैं, आपने उन्हें omit करना है, और इन phrases या information को आपने replace करना है वन वर्ड सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करके। देखिए, आपने वर्डी एक्सप्रेशंस या जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उन्हें सिंगल वर्ड के साथ रिप्लेस कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो प्रेसी है वो कंसाइज होगी। ऑल द एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कैन आल्सो बी ओमिटेड इन ऑर्डर टू मेक अ गुड प्रेसी। अगर एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स यूज़ किए गए हैं ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर तो आपने उन्हें भी ओमिट करना है अपनी प्रेसी राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए। फिर आता है साइज। कीप द फैक्ट इन योर माइंड दैट द लेंथ ऑफ द प्रेसी शुड बी द 1/3 of the original passage। Normally it is normally whenever you are directed to write a précis, you are often given the size of your expected précis writing, and normally it is 1/3 of the original passage। ठीक है, कि आपको तीसरा हिस्सा प्रेसी लिखते हुए आपने जो ओरिजिनल पैसेज है उसका तीसरा हिस्सा आपने लिखना होगा। ठीक है, दैट इज़ नॉर्मली द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ प्रेसी राइटिंग। फिर आता है ऑन वर्ड्स। देखिए, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। प्रेसी शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स एंड द राइटर शुड एब्सटेन फ्रॉम बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि
एक एक दो दो लाइंस या कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ को अंडरलाइन करके और फिर उन्हीं को रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी प्रेसी के अंदर। तो आपने इस चीज़ को बिल्कुल केयरफुली देखना है कि आपकी जो प्रेसी है दैट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आपने ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर से वर्ड्स आइडियाज़ बोरो नहीं करने, बल्कि आपने वहाँ से वर्ड्स और आइडियाज़ लेके उन्हें अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। A Prezi writer should adopt an objective approach. He should not add his personal ideas to a Prezi. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपकी जो प्रेसी राइटिंग है उसमें आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपने ऑब्जेक्टिव रहना है। पुट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडियाज़ इन लॉजिकल ऑर्डर। जो भी पॉइंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उन्हें उन सबको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। लेकिन you have to de-attach your own thoughts, your own opinions, your personal liking और disliking। ठीक है, कहीं पे भी आपकी प्रेसी राइटिंग के अंदर आपकी अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं शो होनी चाहिए, बल्कि आपने ऑब्जेक्टिव रहते हुए अपनी प्रेसी लिखनी है। वन पैराग्राफ। जब भी प्रेसी राइटिंग लिखी जाती है तो आपने उस प्रेसी को पैराग्राफ में डिवाइड नहीं करना, बल्कि देयर शुड बी ओनली वन पैराग्राफ। देयर कुड बी टू और मोर पैराग्राफ्स इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। While making the pressy, try to write all the ideas in one paragraph। ठीक है, अगर आपके ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर दो चार जितने भी पैराग्राफ्स हैं, लेकिन आपने अपनी प्रेसी राइटिंग में सिर्फ सिंगल पैराग्राफ में लिखना है उसे। ठीक है, रफ ड्राफ्ट। After omitting all the unnecessary ideas, the writer should prepare a rough draft to finalize it। ठीक है, जब आपने अंडरलाइंड आइडियाज़ की बेस पे आपने जो रफ ड्राफ्ट बनाया, उसमें आपने क्या किया कि कुछ चीज़ें आपने ऐड की, कुछ आपने उनमें से रिमूव की। उन रिमूव और जो एडिड चीज़ें हैं, ठीक है, उन आइडियाज़ की बेस पे आपने फर्स्ट जो ड्राफ्ट आपने लिखा दैट इज़ योर रफ ड्राफ्ट। ठीक है, और आपने उसको फाइनल नहीं करना। फाइनल जो है वो आपने बाद में लिखना होगा, जिसमें आपने मज़ीद कुछ ट्रिमिंग करनी होगी। ठीक है, एंड फाइनली कम्स फाइनल ड्राफ्ट। हैविंग read the rough draft and pointed out some mistakes which may be found in the rough draft, the writer can prepare the final draft। ठीक है, जब आपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, जो आपका रफ ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट के अंदर आपने मज़ीद मिस्टेक्स देखी या आपने उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ उसमें से आपने कुछ चीज़ें ओमिट की, और उसको ओमिट करने के बाद आप अपना फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके रफ ड्राफ्ट के अंदर हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो, या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से रिमूव करनी चाहिए जो अननेसेसरी थी, या आप समझते हैं कि इसमें कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो आपने वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने उसमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप समझ जाएंगे कि अब आपकी जो प्रेसी है वो इस काबिल है, ठीक है, और वो अब काफ़ी हद तक बेहतर है, तो फिर आप उसको फाइनल ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो हमारा जो सेशन था वो प्रेसी राइटिंग से मुतल्लिक था, जिसमें हमने देखा कि प्रेसी राइटिंग एक समरी लिखना है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ लाइक अ मिनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ द पैसेज, यानी कि आपने उसका शॉर्टेस्ट पोर्ट्रेट देना है एक पैसेज का। ठीक है, इट रिटेन्स द एब्सोल्यूट एसेंशियल पॉइंट्स accompanied with the mood and tone of the author of the passage। The one aspect that needs to be taken care of is
that one should not add one's subjective interpretation or comments to the précis and should try to retain the original author's voice and opinion. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो प्रेसी राइटिंग है वो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपने अपनी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं देनी, यानी कि आपने अपने जो कमेंट्स हैं वो नहीं उसमें ऐड करने, बल्कि आपने जो राइटर है, ओरिजिनल जो राइटर है, उसी की वॉइस और उसी की जो ओपिनियंस हैं उन्हीं को आपने रिटेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि आपने जो समरी लिखनी है तो समरी ये नहीं है कि आपने उस पैसेज को का तीसरा हिस्सा प्रोवाइड कर दिया, बल्कि आपने उस पैसेज की जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उनको आपने शॉर्टेस्ट वे में कम्युनिकेट किया अपने रीडर को। ठीक है, यानी कि आपने सिर्फ एक पैसेज की लेंथ को शॉर्ट नहीं करना, बल्कि उस पैसेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है आपने उसको शॉर्टेस्ट वे में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में कम्युनिकेट करना है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में आपको प्रेसी राइटिंग की समझ आएगी होगी। थैंक यू।